Today we are going to start the physics for the master cadre exams, and I'm here with you, Dr. Isha Gowri. So let us have a brief discussion about the syllabus, about the pattern, and then we will see how the exam is coming. Okay. So firstly, the I am concentrating on these three papers 16, 17 and 20 या ऑब्लिक 21 ये जो टेंजेंट को हुआ है. एंड आई हैव सीन by these three papers that the firstly the nuclear and particle physics it has the highest weightage in all the exams, and after that optics and laser, and then atomic and molecular physics, which also includes X-rays, Lyman series, Balmer series, Paschen series. These things we will do in these details also. And then quantum mechanics. These are the four main core subjects that have come. Undoubtedly all subjects are valuable. We will give respect to all the subjects, like we will also discuss statistical mechanics, but we will do the basics which are coming in the exams, because I have seen that the master cadre exam is actually checking your basics. Detailed numericals are not coming. Everybody have seen the paper of the 2021 that has came on the 10th of Jan. I think most of the students have seen it. I will also solve the paper. Then you will came to know that the paper has checked how basics are understood by the person, right? So I will firstly start with optics and laser. चलिए करते हैं इसको. Okay. Optics and lasers. Optics and laser is comprising of the four parts. One is the interference, another one is diffraction, third one is polarization, and the fourth one is lasers and devices based on it. Different types of lasers, that is ruby laser. In your syllabus there are three lasers: ruby laser, helium neon laser, and I think carbon dioxide is also there. We will see their wavelengths कि कितने पे लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इनकी पंपिंग कौन सी पंपिंग है, ऑप्टिकल है कि इलेक्ट्रिकल है, एंड देन कौन से लेवल का लेज़र है, 3 लेवल है कि 4 लेवल है. These things we will go to do. Okay, so the whole unit will comprising of these four things, and I am damn sure in this topic you will surely gain this much knowledge that at least from today's lecture you will be able to answer at least 2 to 3 questions 100%. So be attentive. ठीक है, चलिए let me start interference. Okay, interference. Let me change the color. Interference basically I am giving you one example. Suppose दो लोग हैं A and B, right? Both of them are very good friends. Let us start a business. दोनों 50-50 लाख लेते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. दे हैव 1 CR. 1 CR में से क्या करते हैं, 80 लाख एक बिजनेस पे लगा देते हैं, 20 लाख एक बिजनेस पे लगा देते हैं. तो जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लगाई उसको हम आगे जाके फिजिक्स में इंटरफेरेंस का मैक्सिमम बोल देते हैं, और जहाँ पे मिनिमम लगाई, मिनिमम 0 भी हो सकती थी, हो सकता है सारा का सारा ही एक में लगा देते, तो कहते हैं कि नहीं एक में ही काफ़ी लग जाता है, एंड देन एक में थोड़ा मिनिमम लगा दिया. तो ये क्या हुआ, ये वही अमाउंट थी बट ये क्या हो गई है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है. प्लीज़ रिमेंबर द वर्ड आई एम सेइंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अकर. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन हैज़ हैपेंड. ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंटरफेरेंस भी यही होती है. इंटरफेरेंस इज एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट. अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होती किस तरह से है, आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल.
अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि एवरीबडी नोज दैट जब एक वेव दिखाई जाती है तो वो एक वेव फॉर्म किस तरह से दिखाई जाती है. किसी भी वेव को ऐसे दिखाया जाता है. जस्ट अ मोमेंट, लाइन इज़ नॉट कमिंग गुड. ओके, किसी भी वेव को मैं कैसे दिखाऊंगी. दिस इज़ फाइन, कंपैरेटिवली फाइन. ये वेव दिखा दी गई है. ओके, दिस इज़ एक वेव दिखा दी गई जिसको मैं लिखूंगी y इज इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी. अब ये a क्या है. दिस a इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. आई विल आफ्टर दिस यूज दिस वर्ड रैंडमली. एंड एम्पलीट्यूड के बाद एक टर्म आती है जिसे बोला जाता है इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. सपोज कि जैसे ये वाली ही वेव ले ली जाए तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. तो दैट मीन्स अगर कोई I1 सोर्स में मान लूँ, इट विल बी इक्वल टू के ए स्क्वायर. हाउ आई विल शो इट इन डायग्राम. लेट मी ड्रॉ विद अनदर पेज color so that it would be seen differently. And this is the amplitude, right, this quantity. So amplitude is the maxima of the crest. This is crest and it is minima of the trough. कि जहाँ पे minima आया, it is trough. So this is called amplitude. Okay, so let me now start कि होगा क्या, इसमें आगे क्या होगा. Okay, okay. तो मैंने दो वेव्स ली और उनके सुपरपोजिशन चेक करने लगे हैं. एक वेव रेड कलर से शो कर देंगे हम अपने टॉपिक में और एक वेव को हम शो कर देंगे ब्लैक कलर से. दिस इज़ फर्स्ट वेव ए और लेट मी चेंज द कलर अगेन सो दैट डिफ्रेंशिएट ईजिली हो जाए. ब्लू ले लेते हैं. ये दूसरी वेव ले ली मैंने. दिस वेव इज़ बी. इनके सुपरपोजिशन करवाई. सुपरपोजिशन कराने से दो चीज़ें हो सकती हैं. क्या हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग, एक को रेफरेंस मान लेते हैं रेड. ओके, सो रेड वाली ये रही, दिस इज़ ए. और जो दूसरी है वो इस तरह से इसके ऊपर इसके साथ सुपर इम्पोज कर रही है. कैसे कर रही है. ऐसे ही, दिस वे. ओके, दिस इज बी. दिस वाज ए, दिस इज बी. तो हुआ क्या, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल कर रही है, राइट, एंड ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है. तो इससे जो रिजल्टेंट बनेगा एवरीबडी नोज कि बढ़ जाएगा. तो ये इसकी रिजल्टिंग वेव आ गई. ये रिजल्टेंट आ गया. ये जो रिजल्टेंट आया है, हमें इससे क्या पता चला कि ये जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट हैज़ अ हाई इंटेंसिटी, दैट इज सेट एज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी. मैक्सिमम इंटेंसिटी. अब हम इसका मीनिंग क्या है. दैट मीन्स सम कंस्ट्रक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस थिंग. Constructive interference, and another thing, it is for the position of the byte bands. So these are the three things that we came to know from the when the crest of the one is overlapped with the crest of the other. Another thing can also happen. What? That is when the crest of one is overlapped with the trough of the another. So ये first wave है, ठीक है. एंड सेकेंड वाली इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं. लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर, द ब्लू वन. ये रही दूसरी. राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी. नाउ द रिजल्टेंट वुड बी, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट. वी कैन ईजिली सी देन द क्रेस्ट इज ओवरलैप विद द ट्रफ, सो द रिजल्टेंट विल डिक्रीज. तो ये हमारी रिजल्टेंट हो गई. ये रिजल्टेंट आ गई. और इससे क्या हुआ, ये जो मिनिमा आएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और क्या इससे पता चला हमें
कि मिनिमा आ गया है और यहाँ पे जो बनेंगे डार्क बैंड्स बनेंगे. सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन इंटरफेरेंस. अब करते वक्त स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सपोज़ करिए मैम कि इस तरह से होता कि ये दोनों बिल्कुल ही सेम एम्पलीट्यूड की होती, क्योंकि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ये है और बी वाले का ऑब्वियसली आई कैन ईजली सी कि कम है, तो इसीलिए जब ये ओवरलैप हुई तो थोड़ा बहुत आंसर आ गया, बट थोड़ी बहुत हमें रिजल्टेंट वेव दिख गई. अब सपोज ये दोनों बिल्कुल ही सेम एम्पलीट्यूड्स की होती तो इट वुड बी अ कंप्लीट डार्क बैंड. अनडाउटेडली डार्क तो मैं इसको भी बोल रही हूँ, बट इट वुड बी लेसर डार्क. ठीक है. सो एक पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वुड हैपन इफ द टू इंटरफेयरिंग वेव्स सुपर इम्पोज विद सेम एम्पलीट्यूड बट आउट ऑफ फेज. आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन. सो लेट मी राइट दिस क्वेश्चन. What would happen if two superimposing waves in interference are 180-degree phase with each other, having same amplitude, height of the crest or depth of the trough. A option, dark bands, with minimum light, lesser darkness comparatively. C, bright bands, and D, no light. सो वी कैन ईजली से, क्योंकि दोनों 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे थे और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था, तो एम्पलीट्यूड सेम होने से होगा क्या कि अगर एक वेव ये आ रही है और जो दूसरी वेव है वो बिल्कुल ही सेम एम्पलीट्यूड की, एग्जैक्टली सेम, तो वही बात होगी जैसे हम मैथ्स में करते हैं 2 + 2 -2 सॉरी. सो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा हमें, तो वो हमारे पास प्रॉपर डार्कनेस आ जाती है, इस तरह की दिखेगी हमें, ये रिजल्टेंट हमारा आएगा. तो एक बात याद रखनी है, इंटरफेरेंस एक्चुअली बेस्ड ही इसी पे होती है. इंटरफेरेंस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें बहुत ही फाइन कंट्रास्ट होता है, जो कि डाइफ्रैक्शन में हमें नहीं दिखने को बोलता. फाइन कंट्रास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन इंटरफेरेंस. इस वर्ड का मतलब क्या है फाइन कंट्रास्ट? फाइन कंट्रास्ट का मतलब होता है ब्राइट बैंड्स वुड बी ब्राइटेस्ट, and dark bands would be darkest. ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस में ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड नाउ द नेक्स्ट वन. अब इंटरफेरेंस चाहिए तो इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेज चाहिए. सोर्सेज किस तरह के चाहिए होंगे हमें? मुझे इंटरफेरेंस चाहिए, सो द सोर्सेज, क्योंकि दो सोर्स चाहिए तभी इंटरफेरेंस होएगी. The sources required for producing interference are, कैसे होने चाहिए? They are always coherent sources. Coherent sources क्या होते हैं? बड़े अच्छे से हमने पढ़ना है, because this question has came in 2016 exam. Coherent sources, तो होते क्या हैं coherent sources? Let us now start coherent sources. Coherent sources
फर्स्ट पॉइंट, they must have same frequency. Second, they must have same wavelength. Third, they must have zero phase difference or constant phase difference. Constant phase difference, ये इसके लिए बड़ी कंपल्सरी 3 कंडीशंस हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2016 एग्ज़ाम क्वेश्चन करवाऊंगी मैं. इसके बाद अभी क्वेश्चन ही लिखने लगी हूँ, ठीक है. अब इसके लिए कंपल्सरी कंडीशंस तो ये हो गई. एक चीज़ और भी होती है सोर्सेज के पास, वो होता है एम्पलीट्यूड. बट ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, दैट द प्रेजेंस ऑफ, yeah, the condition of, I would perfectly write the word as condition of same amplitude. अगर एम्पलीट्यूड सेम तो इंटेंसिटी से ही रिलेटेड होती है, और सेम इंटेंसिटी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो कंडीशन है ये कभी भी कंपल्सरी नहीं होती. इसी पे ही क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कंडीशन, इट इज़ नेवर नेवर कंपल्सरी. ठीक है, तो अब कैसा क्वेश्चन आ रखे हैं, लेट अस डू द क्वेश्चन ऑफ 2016 एग्ज़ाम. चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, द मैंडेटरी कंडीशन for 2 waves to undergo interference are mandatory conditions. A, same frequency. B, same intensity. C, same amplitude. And D, same phase or constant phase difference. The correct options are first A and B, second A and C, third B and C, fourth A and D. इन क्वेश्चन को करने से पहले सारी चीज़ें माइंड में लानी है. फ्रीक्वेंसी सेम होना तो बहुत ज़रूरी होता है, राइट, वी नो दिस थिंग. ठीक है, मैंडेटरी क्या नहीं होता कि सेम इंटेंसिटी एंड सेम एम्पलीट्यूड, दे आर नॉट मैंडेटरी फॉर अस, क्योंकि ये तो हमें चाहिए. फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और दूसरी चीज़ फेज़ डिफरेंस या तो सेम हो, जिसे हम ज़ीरो फेज़ डिफरेंस भी बोल देते हैं, कि दोनों एक साथ चलें तो ज़ीरो फेज़ डिफरेंस हो, राइट, या फिर उन दोनों के बीच में कांस्टेंट. तो ये दोनों मेरे लिए मैंडेटरी कंडीशंस हैं. दिस वुड बी द राइट आंसर. ओके, अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी बेस्ड ऑन the coherent sources also is the compulsory condition for 2 waves to undergo interference is zero phase difference between the combining waves. Okay, and the options are true and another one is false. ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जब क्लासेस लेते हैं हम तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ऑलवेज सेज कि मैम ये तो ट्रू है, कि ये तो बात बिल्कुल ही ट्रू है.
काफ़ी बच्चे यही आंसर देते हैं, होपफुली जो सुन रहे हैं वो भी शायद यही सोच रहे हो, बट एक्चुअल में इसका आंसर फॉल्स है. वाई इट इज़ फॉल्स? बिकॉज द फेज डिफरेंस कैन बी ज़ीरो और फॉर फेज डिफरेंस कैन बी कॉन्स्टेंट. तो दैट मीन्स कि ज़ीरो फेज डिफरेंस एक कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द कंपल्सरी कंडीशन. कि फेज डिफरेंस ज़ीरो हो तो अच्छा है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो तो भी हमारा तो काम चल जाएगा. जैसे कि सपोज़ मेरे पास एक वेव है, वो अगर a साइन ओमेगा टी है, तो अगर जो दूसरी वेव इससे कंबाइन कर रही है वो b साइन ओमेगा टी हो तो बढ़िया है. अगर वो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री हो, मुझे तो तब भी कोई इशू नहीं है. ये तो दोनों तब भी कोहेरेंस बना देंगी, ये दोनों तब भी एक कोहेरेंट सोर्सेज ही होंगी और ये बड़ा अच्छा इंटरफेरेंस हमें दिखा सकती हैं. सो राइट, दिस इज़ द बेसिक्स दैट वी नीड फॉर स्टडिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड इन द नेक्स्ट वी कैन सी दैट अब हमने देख लिया हमें सोर्सेज क्या चाहिए. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see कि how these sources combined, how they will give us the very famous experiment that is Young's double slit experiment. और Young's double slit experiments में से एक क्वेश्चन हर साल पेपर में आता ही आता है. इसके हम निकालेंगे कि इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसमें मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कि इसमें पाथ डिफरेंस कितना है और इसमें फेज डिफरेंस कितना है. यही क्वेश्चन आ रखा है बीच पेपर में. और इसी तरह इसमें एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी फिर पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना चाहिए. ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस का क्वेश्चन है ये 2016 में आया हुआ है. सो दिस थिंग वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.